Hello everyone, welcome to your class. In this class, we will solve NSO question paper. This is 2021 question paper. We will solve each question one by one and you will get the PDF for the same in description box. You can download it from there. So question 1. Find the missing number in the given number pattern. This is the logical reasoning question. Find the missing number in the given number pattern. You have to understand the pattern. पैटर्न मैं हमेशा किस तरह समझाती हूँ, जब भी आप नंबर्स को देखेंगे आप सबसे पहले ये सेट करेंगे कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट. सो 12, 15, 18, दैट मीन्स नंबर्स आर increasing and now we will see with how many number they are increasing. See, this is 12 and this is 15. So what are the difference? 13, 14, 15. थ्री नंबर्स यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं. देन नेक्स्ट 15 to 18, अगेन थ्री नंबर्स. नाउ 18 to which number? You will have to add plus 3 here. 18 plus 3, 19, 20, 21. So correct answer is 21. You will write here 21. Next question. Which of the following amount is enough to buy the given toy guitar? This is a toy given to you. This is cost 77 rupees. So they are asking which of the following amount is enough to buy the given toy. ये toy buy करने के लिए आपको कितना amount चाहिए? See, this is rupees 50, 20, 100 and 10 and this cost 77 rupees. So आपको मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए? 100 rupees you will need. 50 क्योंकि ये लेस देन हो जाएगा 77 से एंड 20 एंड 10 ये भी लेस देन है, इसलिए आपको मिनिमम अमाउंट रुपीज़ 100 चाहिए सो दैट यू कैन बाय द गिटार. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन आउट. यू विल हैव टू सिलेक्ट द ऑड वन आउट. आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? दिस इज डॉग, स्पैरो, कैट एंड मंकी. What is the difference you can find out? क्या यहाँ पे difference हम देख पा रहे हैं? Dog, cat and monkey, they cannot fly, and sparrow, yes, it can fly, so it is the odd one out. For the better understanding, parents, I request कि आप पहले PDF इसका डाउनलोड करके आप बच्चे को इसको हार्ड कॉपी निकाल के दीजिए ताकि बच्चा मेरे साथ इसको सॉल्व भी कर सके. Now the next question. Kite dash is fourth from the right end in the arrangement given below. You have to find the kite which is fourth from the right. See, this is left written already. So this is right. You will have to count from here till fourth. First, second, third, fourth. Which is the fourth kite? Kite M. So you will tick the correct answer, kite M. Next, there are dash circles in the given figure. You have to count the circle. Circle आप किस तरह से count करेंगे? See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The answer is 10. Now, science section. Next, which of the following is the young one of the animal shown in the given picture? This is horse. Horse के young one को हम foal बोलते हैं. Foal. Next, if Payal's mother has 2 sisters and 1 brother, then how many children does Payal's maternal grandfather has? देखो, now Payal's mother, पायल की जो mother है उनकी 2 sisters हैं एंड 1 brother है, तो दैट मीन्स कितने हो गए टोटल? 2 sisters, 1 brother. 2 plus 1 is 3 एंड 1 वो एक खुद, क्योंकि खुद भी वो पायल की जो मदर है वो उनकी बेटी हो गई ना, तो ये क्या हो गया? 4. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. करेक्ट आंसर इज 4. पायल के ग्रैंडफादर के कितने बच्चे होंगे? 4 बच्चे होंगे. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन which on unscrambling gives the name of an object that should be worn while doing the activity shown in the given picture. यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? कुछ scrambled words हैं. You have to unscramble and
Gives the name of an object that should be worn while doing the activity shown in the given picture. He is cycling. यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो साइकिलिंग करते टाइम आपको पहनने चाहिए. सो फर्स्ट यू विल अनस्क्रैम्बल इट. ऑलराइट, सी दिस इज SEAT, सीट. BELT, बेल्ट. मीन्स मैं आपको राइट करके बता रही हूँ, सीट बेल्ट. ये है सीट बेल्ट. दिस इज हेलमेट. हेलमेट. नाउ नेक्स्ट इज gloves. GLOVES, gloves. Now next is scarf. SCARF. So while doing cycling you must wear helmet. Correct option is helmet. The correct option to complete the given analogy. यहाँ पर आपको दिया गया है peach, one seeded fruit. Now यहाँ पर आपको एक फ्रूट का नेम लिखना है which has few seeded fruit. मतलब जिसमें few seeds होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. देखो पपाया, पपाया में क्या होता है? पपाया हैज़ many seeds. इसमें पपाया में क्या होते हैं? बहुत सारे seeds होते हैं. एंड सेम इज द केस विद पोमोग्रेनेट. पोमोग्रेनेट में भी बहुत से सीड्स होते हैं, many seeds. The difference is they are asking few seeds and papaya and pomegranate have many seeds. Now mango, mango has only one seed. Orange, orange is the fruit which has few seed. यहाँ पर orange आप टिक करेंगे. Orange is the fruit which has few seeds, right? Next, refer to the given diagram and select the option that correctly identifies X. इस तरह से जब भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको क्या दिखना होता है? यहाँ लिखा है नॉन लिविंग थिंग एंड दिस इज मैन मेड थिंग. यहाँ पर आपको सेंटर में ये जो एरिया है ये दोनों सर्कल में इंक्लूड हो रहा है. मीन्स आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो नॉन लिविंग भी हो एंड जो मैन मेड भी हो. तो आप देखेंगे इरेजर. इरेजर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, एक मैन मेड भी है, राइट? नेक्स्ट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई इज इट मैन मेड? नो, एंड दिस इज नॉट नॉन लिविंग ऑल्सो. ये नॉन लिविंग भी नहीं है और मैन मेड भी नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. ट्री, ट्री क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, सो नॉन लिविंग नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रॉन्ग. वाटर, वाटर मैन मेड नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है. करेक्ट ऑप्शन इज इरेजर, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग भी है एंड मैन मेड थिंग भी है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब जिसको हम आंधी, आंधी जिसको हम बोलते हैं स्टॉर्म. नॉट करेक्ट पे आपको टिक करना है, इस पर ध्यान रखना है. नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट. इट इज़ अ स्लो एंड जेंटल मूविंग विंड. ये स्लो होती है एंड जेंटल होती है. इट इज़ अ फास्ट मूविंग विंड दैट मोस्टली कम्स विद रेन एंड लाइटनिंग. ये आंधी क्या होती है? एक फास्ट मूविंग विंड होती है जो हमेशा क्या लाती है? रेन लाती है. एंड लाइटनिंग मीन्स जो लाइटनिंग होती है. इट कैन कॉज डैमेज टू लाइफ. ये लाइफ को डैमेज कर सकती है. इट कैन कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी. अगर बहुत तेज़ अगर आंधी स्टॉर्म्स होते हैं तो ये प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकती है. सो विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? This is first option is incorrect. It is a slow and gentle moving wind. No, it is a fast moving wind. ये gentle नहीं है, slow नहीं है. Storms क्या होते हैं? अगर जो slow gentle होती है उनको हम बोलते हैं breeze. उस wind को हम बोलते हैं breeze. Next, who am I? आपको read करना है. I am the brightest object in the sky during daytime. I give heat and light. I make life possible on earth. आपको इसी से समझ में आ जाएगा. आई गिव हीट एंड लाइट. हु गिव्स हीट एंड लाइट? द सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एज एनिमल एक्स. एक्स यहाँ पर कौन सा एनिमल है? ये जेब्रा. जेब्रा के साथ आपको देखना है कौन सा एनिमल आप इसी ग्रुप में डाल सकते हैं. देखो जेब्रा क्या है? एक हर्बीवोरस एनिमल है जो मतलब प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास ये सब चीज़ें खाता है. हर्बीवोरस एनिमल है. बाकी सब आप अगर आप देखेंगे स्नेक, लायन एंड ये ईगल, ये सब क्या है? ये वोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल्स है. सो सेम ग्रुप में कौन सा जा पाएगा? जिराफ. दिस इज ऑल्सो हर्बीवोरस एनिमल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? यहाँ पर आपको ये क्या दिए गए हैं? बियर, स्लॉथ, गोट, ट्राइब, फ्रॉग, स्वैम, जिराफ, टावर. ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स. दैट मीन्स इनके ग्रुप को आप एक नाम देते हैं. ये कलेक्टिव नाउन्स वो है स्लॉथ, ट्राइब, स्वैम, टावर.
ये कलेक्टिव नाउन्स हैं. सो बियर के ग्रुप को स्लॉथ बोलते हैं. यस, दिस इज करेक्ट. गोट के ग्रुप को ट्राइब बोला जाता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फ्रॉग स्वैम, नो. फ्रॉग के ग्रुप्स को हम आर्मी बोलते हैं. एंड स्वैम किसके ग्रुप को बोलते हैं हम? हनी बीज के ग्रुप को स्वैम बोला जाता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. फ्रॉग एंड स्वैम, दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑड वन इज इनसर्कल्ड इनकरेक्टली. आपको ऑप्शन देखना है किस ऑप्शन में जो सर्कल किया गया है वो ऑड मतलब वो गलत है. ऑड वन इन्होंने सर्कल किया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच इज इनकरेक्ट. कौन सा इसमें इनकरेक्ट है. इस क्वेश्चन में जो ऑड वन सर्कल किया गया है वो एडिबल्स के बेसिस पे किया गया है. एडिबल, व्हाट डू वी मीन बाय एडिबल? एडिबल मीन्स जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, मतलब खाने लायक जो चीज़ होती है उसको हम एडिबल बोलते हैं. सो एडिबल फ्रूट्स होते हैं, एडिबल रूट्स होते हैं, एडिबल लीव्स होते हैं, एडिबल प्लांट्स होते हैं. मतलब जिन चीज़ को आप खा सकते हैं वो एडिबल हम उसको बोलते हैं. अब इसमें अगर आप देखेंगे कैरेट, रेडिश एंड कैरेट, दे आर एडिबल रूट्स, क्योंकि ये रूट्स में मीन्स अंडरग्राउंड पाए जाते हैं. इनको हम एडिबल रूट्स बोलते हैं. लेडी फिंगर, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो लेडी फिंगर इज़ अ फ्रूट बिकॉज इट हैज़ सीड्स इन इट. इसमें सीड्स होते हैं इसलिए इसको एक फ्रूट भी कहा जाता है. सो दिस इज एडिबल फ्रूट एंड दीज आर एडिबल रूट्स. सो ये ऑड वन करेक्ट है. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे टमाटो, मैंगो एंड beetroot. So tomato and mango, they are edible fruits and beetroot is edible root. केस में इनकरेक्ट मीन्स जो ऑड होना चाहिए था वो बीटरूट होना चाहिए था, बट इन्होंने मैंगो को सर्कल किया है. सो दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ पर आपको इसको इनकरेक्ट टिक करना है बिकॉज अगर आप जनरली बच्चे इसको एडिबली अगर इसको नहीं समझ पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चा अपने हिसाब से एक दिमाग लगाएगा. देखो यहाँ पर आप इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, शेप्स इसमें सही हैं, सेम शेप्स आ रही हैं, वो सही है. इसमें अगर आप देखेंगे सो ये पटैटो एंड गार्लिक, ये क्या है? ये वेजिटेबल्स एंड स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट है, तो दैट मीन्स ये भी सही है. इसको अगर आप देखें यहाँ पर ये ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है एंड कैबेज है. ये दोनों जो है ये फ्लावर्स हैं, इसमें फ्लावर से होता है एंड इसमें लीव्स होते हैं, तो दैट मीन्स ये भी करेक्ट है. आप इसको बी ऑप्शन को इस तरह से भी टिक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letters to obtain the name of vegetable. यहाँ पर आपको इसको unscramble करना है and you will get the name of a vegetable then. यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये क्या बनेगा? spinach. Spinach means SPINACH. spinach. Spinach के लिए अब आपको क्या करना है? Now select the correct statement regarding it. आपको यहाँ पर correct statement टिक करनी है. Its edible part prepares food for the plant. Its edible part grows into a fruit. See, edible part ही किसको बोल रहे हैं? जिसमें जो पार्ट स्पिनच में खाया जाता है. स्पिनच में कौन सा पार्ट खाया जाता है? उसकी लीव्स. स्पिनच मीन्स पालक. पालक के हम क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं उनके, राइट. सो इट्स एडिबल पार्ट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. इट्स एडिबल पार्ट ग्रोज इनटू अ फ्रूट. इट्स एडिबल पार्ट एब्जॉर्ब्स मिनरल फ्रॉम द सॉइल. Its edible part absorbs water from the soil. Correct statement is first. It prepares food for the plant because spinach क्या है? Leaves है and leaves क्या करती है? Plant के लिए food prepare करती हैं. Leaves का काम ये होता है. So इस केस में spinach जो इसमें leaves होती हैं वो क्या करती हैं? It prepares food for the plant. So correct answer is this one. Next question. A or an dash fits and repairs taps and pipes. Taps and pipes ये कौन रिपेयर करता है? It's a plumber, not tailor, mason and electrician. No. Next, mason is who builds the buildings. जो buildings बनाते हैं उनको हम masons बोलते हैं. Next, in which of the following rooms of the house will you find the objects shown in the given box? ये आपको कुछ objects दिखाई दे रहे हैं. They are asking in which room of your house you will find these objects. ये आप कहाँ देखेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स? किचन में. किचन, बेडरूम, बाथरूम, लिविंग रूम, किचन. करेक्ट ऑप्शन इज किचन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड बाय अ फार्मर? फार्मर क्या यूज करता है इनमें से? ब्लैक बोर्ड, डस्टर और चॉक और इंजेक्शन? नो, फार्मर क्या यूज करता है? हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो व्हाइल राइडिंग इन अ कार.
Select the incorrect statement which you have to follow while driving in a car. We should always wear seat belt. We should never take out our hands or head out of the window. We should never disturb the driver. We should stand on the seat. कौन सा इसमें इनकरेक्ट है while you are driving in a car? जब आप कार में आप राइड कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, उसकी इनकरेक्ट जो गलत है वो आपको टिक करना है. वी शुड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट मीन्स आपको हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए. यू शुड नेवर टेक आउट हैंड्स और हेड आउट. कभी भी आपको अपने हैंड्स और हेड विंडो के बाहर नहीं निकालने चाहिए. नेक्स्ट, ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. एंड फोर्थ इज सीट पे आपको खड़े होना चाहिए. वी शुड स्टैंड ऑन द सीट. यस, डी इट इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइंस शोज स्कूल्स अहेड? यहाँ पर कौन सा ऐसा साइन है जो शो करता है आगे स्कूल है? देखो, दिस इज एरोप्लेन इज मेकिंग, तो ये क्या है, एयरपोर्ट को शो करता है. यहाँ देखो, देयर इज अ किड हैविंग अ बैग इन ऑन हिज शोल्डर. ये क्या है, ये स्कूल शो करता है. एच फॉर हॉस्पिटल एंड दिस इज फॉर वे क्रॉसिंग. सो स्कूल के लिए कौन सा होता है साइन? दिस वन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट रिक्वायर एयर? इनमें से कौन सी एक्टिविटी को एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है? बर्निंग ऑफ गैस स्टोव, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, फ्लाइंग ऑफ काइट. इसमें से कौन सी एक्टिविटी में एयर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है? वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स. गैस बर्न करने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है. क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए तो ऑब्वियसली एयर की ज़रूरत है. एंड काइट फ्लाई करने के लिए भी हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वाटर गेटिंग डर्टी? यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी एक्टिविटी शो कर रही है इन विच वाटर इज गेटिंग डर्टी. सी, रिवर्स में देखो, ये रिवर्स है. यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ रिवर्स में डंप किया जा रहा है. यहाँ नाउ इन दिस इमेज टैप इज ओपन. इन दिस वाटर वेस्टेज इज शोन. यहाँ पे वाटर वेस्ट हो रहा है. यहाँ कुकिंग हो रही है एंड दिस इज शावर. इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें शो हो रहा है कि वाटर इज गेटिंग डर्टी? दिस वन, बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें रिवर्स में जा रहा है. सो दिस इज हाउ वाटर इज गेटिंग डर्टी. नाउ द गिवन पिक्चर शोज डैश. ये पिक्चर है, ये कौन सा मून शो कर रहा है? गिविस मून, क्रिसेंट मून, फुल मून और न्यू मून? बी, दिस इज क्रिसेंट मून. Study the given word chop table. Which of the following sets of boxes will give the name of an animal that lives in a hole? देखो, आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है. आपको इस बॉक्स को स्टडी करना है और यहाँ पर कुछ सेट दिए गए हैं लाइक 4 and 7, 5 and 11, 3 and 10, नाउ 2, 8 and 12. यहाँ पर एनिमल्स के नेम बनेंगे इन सेट से. आपको बताना है कौन सा सेट ऑफ एनिमल इसमें ऐसा है जो होल में रहता है. सो सबसे पहले आप एनिमल सर्च करेंगे, एनिमल कौन से हैं. 4 and 7. 4 and 7 पे यहाँ क्या है? 4 पे LI है एंड 7 पे ON, दैट इज लायन. B 5 and 11. 5 पे हॉर एंड 11 पे SE, हॉर्स. 3 and 10. 3 snake एंड 10 स्नेक. 2, 8, 12. 2 पे है SP, 8 पे है ID एंड 12 पे है दैट इज स्पाइडर. बताना है इनमें से कौन सा एनिमल है जो होल में रहता है. लायन लिव्स इन डेन. हॉर्स, इट लिव्स इन स्टेबल. स्नेक, yes, it lives in hole. Spider lives in web. So correct option is snake. It lives in hole. Next question. Which of the following statement is not correct about the given picture X? यहाँ पर आपको picture given है. This is the picture. This is the picture of cactus. आपको देखना है कौन सी statement इसमें incorrect है, जो सही नहीं है. It is a living thing, but it cannot move from one place to another. Yes, trees, all trees, plants are living things. Yes, and it cannot move from one place to another. It is a living thing and can breathe. Yes, it is a living thing and it can breathe. It is a non-living thing that can prepare its own food. This is the incorrect statement. ये एक living thing है and yes, it can prepare its own food. Next question. Which of the following statement is or are correct?
A dancing doll is a living thing as it can move its body parts. आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पे हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है. इनकरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है या फिर करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. अ डांसिंग डॉल इज़ अ लिविंग थिंग. डांसिंग डॉल देखती है आप, वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर लेती है. सो वो कह रहे हैं इस वजह से वो एक लिविंग थिंग है. इज इट करेक्ट? नो. Dancing doll, yes, although it can move its body parts, but it's not a living thing. It's a non-living thing. Grapevine is a non-living thing as it cannot move or make sound. No, grapevine is a living thing. Fish is a living thing as it can feel. Yes, this is the correct statement. Fish is a living thing. All man-made things are made from things that were once alive. मतलब जो मैन-मेड थिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें उन चीज़ों से बनती हैं जो कभी जिंदा थी. दैट वर वंस अलाइव. नो, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैन-मेड होती हैं बट वो उन चीज़ों से बनती हैं जो कभी भी अलाइव, कभी भी जिंदा थी ही नहीं. तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लांट से हमें नहीं मिलती है? इरेजर, रबड़. रबड़, येस, इट इज़ वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. चेयर मीन्स वुड. आपको चेयर नहीं मिलती है, येस ऑफ कोर्स, बट आपको वुड मिलती है जिसके से आप चेयर बनाते हैं. परफ्यूम, येस, ये भी आप प्लांट से मिलता है. बटर, नो, बटर मीन्स दूध. ये काउ दूध से बनता है. दूध हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है एंड नॉट फ्रॉम plants. So correct option is butter. Next, which of the following animals give birth to young ones? Penguin, bat, frog or butterfly? Bat. Bat is the animal which gives birth to young ones. Next, complete the following sentences by choosing the correct sequence of words. आपको यहाँ पे correct sequence search करना है and option को tick करना है. Read the sentence. We go to a dash to report a theft in our house. Where we do we go to report a theft? Theft means चोरी अगर हो जाती है हमारे हाउस में तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन. सो ऑप्शंस आप सबसे पहले देखेंगे. पुलिस स्टेशन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? बी और डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है. मीन्स ए और सी तो इनवैलिड हैं. बी एंड डी में अब आप सर्च करेंगे. सिक्स गो टू अ डैश फॉर ऑफरिंग देयर प्रेयर्स. सिख कहाँ जाते हैं? इनका प्रे करने के लिए सिख्स कहाँ जाते हैं? दे गो टू गुरुद्वारा. सो करेक्ट इज पुलिस स्टेशन एंड गुरुद्वारा. ऑप्शन कौन सा है इसमें सही? पुलिस स्टेशन एंड गुरुद्वारा. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन, दिस इज अचीवर्स सेक्शन. नेम्स ऑफ हाउ मेनी मैन मेड थिंग्स आर देयर इन द गिवन वर्ड ग्रिड. यहाँ पर आपको एक ग्रिड दी गई है. आपको सर्च करना है मैन मेड थिंग्स. मैन मेड जो थिंग्स हैं वो आपको सर्च करनी है. लेट मी जूम इन. आप इसको सर्च करेंगे लाइक दिस. नाउ वी विल सर्च. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये वाटर दिखाई दे रहा है, वाटर, बट दिस इज़ नॉट मैन मेड, राइट. और हम सर्च करते हैं एयर. भी मुझे दिखाई दिया, AIR, एयर. ये भी मैन मेड नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज यस कप. यहाँ पर कप, ये एक मैन मेड थिंग है. नेक्स्ट इज COIN, कॉइन. ये एक मैन मेड थिंग है. नेक्स्ट इज रिंग, RING, रिंग. ये भी एक मैन मेड थिंग है. नेक्स्ट नो, आई कैनॉट फाइंड एनी मोर. यही है बस. 3 man-made things. 3. Next, refer to the given flow chart and select the option that correctly identifies X, Y and Z. यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है. Plant part gives rise to fruit, absorbs water and minerals from the soil. यहाँ पर आपको देखना है gives rise to fruit. कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रूट जिसको बनाता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रूट बनाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होता है? फ्लावर होता है, देन उसका फ्रूट बनता है. तो फर्स्ट किसी भी और ऑप्शन में फर्स्ट एक्स की जगह फ्लावर नहीं दिया गया है तो यू कैन सिंपली टेक इट और यू कैन स्टडी इट मोर. नेक्स्ट देखो, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. कौन सा ऐसा पार्ट है जो एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है.
एंड नो की जगह लीफ आ जाएगा, बिकॉज ये लीफ वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करती है. लीफ क्या करती है? इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given table, few animals are classified into two groups, P and Q, on a certain basis. Select the option that correctly identifies P and Q. आपको यहाँ पर एनिमल्स दिए गए हैं, कुछ ग्रुप 2 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है. आपको देखना है कौन सा सही ग्रुप का आपको मैच इन ऑप्शंस में दिया है, आप उसको टिक करेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं. ग्रुप पी के मैं एनिमल्स रीड कर रही हूँ. वेल, फिश, ऑक्टोपस, डॉल्फिन. नाउ इन ग्रुप क्यू, मंकी, जिराफ, बियर, बफेलो. आपको क्या दिख रहा है? वेल, फिश, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, ये सब क्या है? ये वाटर एनिमल्स हैं, राइट? वाटर एनिमल्स. एंड नेक्स्ट मंकी, जिराफ, बियर, बफेलो, ये सब लैंड एनिमल्स हैं. वाटर एनिमल्स का ऑप्शन हमारे पास एक ही है, हम इसी पे टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेफर टू द गिवन फैमिली ट्री ऑफ तन्वीज फैमिली एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. ये आपको एक फैमिली चार्ट गिवन है. यहाँ पर आपको तन्वी की फैमिली का चार्ट गिवन है, आपको उसको स्टडी करना है. की इसकी गिवन है, जो बॉक्स स्क्वायर है वो मैन के लिए है एंड सर्कल जो है वो विमेन के लिए है. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं. ओम एंड सविता, इनके कितने बच्चे हैं? ये नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? इनके बच्चे, राइट? तो ये कितने हो गए? मयंक, कंचन, रवि, सुमित. अगर आप केयरफुली देखेंगे, ओम एंड सविता के अगर हम बच्चों की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से दिखाई देंगे, बिकॉज लाइंस यहाँ जा रही हैं इनकी इस तरह से. तो दैट मीन्स तानी, कंचन, श्रेया एंड सुमित, ओम एंड सविता की ये बच्चे हैं. मीन्स 4, 1, 2, 3 एंड 4. आगे इनके जो बच्चे दिखाए गए हैं, तो दैट मीन्स ओम एंड सविता के ये ग्रैंड सन्स हो गए. ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर सोनू, तन्वी, तिया एंड कुश. ऑल राइट, ये फैमिली चार्ट है, ये हमने स्टडी किया. अब इनके बेस पे क्वेश्चन हम देख रहे हैं. तन्वी इज सविताज डॉटर. तन्वी इज सविताज डॉटर. नो, तन्वी इज सविताज ग्रैंड चाइल्ड. तन्वी कौन है? ग्रैंड चाइल्ड है. टिया इज मयंक्स सिबलिंग. टिया मयंक की सिबलिंग है. नो. सोनू इज कंचन्स नेफ्यू. सोनू इज कंचन्स नेफ्यू, राइट? दिस इज द करेक्ट. सोनू कंचन के नेफ्यू है. ओम एंड सविता हैव 4 grandsons. ओम एंड सविता के 4 grandsons हैं. 1, 2, 3 and 4. सविता, they do not have 4 grandsons. They have 2 granddaughter and 2 grandsons. देखो, सोनू, तन्वी, टिया एंड कुश, ये हैं इनके ग्रैंड चिल्ड्रन ये हैं. सो सोनू एंड कुश, दे आर ग्रैंड सन्स एंड तन्वी एंड टिया, दे आर ग्रैंड daughters. So that means they have 2 granddaughters and 2 grandsons. So ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन पिक्चर शोज अ लिस्ट ऑफ सेफ्टी रूल्स दैट किरण's मदर प्रिपेयर्ड फॉर हर टू फॉलो एट होम एंड फिक्स्ड इट ऑन द फ्रिज डोर. सबसे पहले इतना ही हम समझते हैं. ये जो पिक्चर यहाँ पे दी गई है, यहाँ पर कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो किरण की मदर ने खुद से लिखे हैं एंड उनको फ्रिज के डोर पर पेस्ट कर दिया है. वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ द फ्रिज, Kiran's father accidentally touched the list with wet hands and few words got erased for it. मतलब जब इसको किरण के फादर ने इसको वेट हैंड से टच कर दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं वो इरेज हो गए हैं. अब आपको इन्हीं वर्ड्स को लिखना है कि यहाँ पर करेक्ट वर्ड्स क्या होंगे, राइट? सो आप इसको रीड करेंगे. डो नॉट टच अ डैश, यू मे गेट अ कट. हमें कट किससे मिलता है? कट हम क्या ऐसा टच ना करें सो दैट वी कैन गेट अ कट? यस, वी विल नॉट टच एनी नाइफ और सीजर, राइट? सो नाइफ और सीजर मतलब ब्लेड, ब्रोकन ग्लास, मतलब इनमें से कुछ हो सकता है. आगे हम देखते हैं. डो नॉट टच डैश विथ वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक, अगर आप वेट हैंड से अगर आप टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो वो क्या होते हैं? स्विचेस और बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो आपको वेट हैंड से टच नहीं करने होते हैं. सो इस केस में यहाँ पर सी ऑप्शन है. फर्स्ट नाइफ आया, देन स्विचेस एंड नेक्स्ट नेवर प्ले विद अ डैश, यू मे गेट अ बर्न. नेक्स्ट करेक्ट हमारा सेट हो जाएगा मैच बॉक्स. यहाँ पर मैच बॉक्स से आपको प्ले नहीं करना है बिकॉज यू मे गेट अ बर्न. सो करेक्ट ऑप्शन इज नाइफ, स्विचेस एंड
मैच बॉक्स। ऑलराइट, आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।